टॉपिक हेडिंग करो टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, हेडिंग करो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल केस छोड़ दो, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज लिखना है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, बाकी कुछ नहीं लिखना है, वो हम बताएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। इन फॉरवर्ड इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, चार्ज। हाँ चार्ज। Sir, এটা heading. এটা হেডিং लिखो द टाइम ऑफ सप्लाई इज, क्या बोले सर? द टाइम ऑफ सप्लाई इज, the time of supply is date of invoice, date of invoice and payment received, Date of invoice and payment received whichever is earlier, whichever is earlier, which is earlier, ओके। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज के लिए क्या बोला? डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव व्हिच इज अर्लियर। ओके, अच्छा उसके बाद नीचे लिखो, लिखो द डेट ऑफ इनवॉइस इज, the date of invoice is, the date of invoice is, the date of invoice, ऐसे लिखो the date of invoice must be, पास्टली must be, must be before the date of removal, before the date of removal or delivery, before the date of removal or delivery। तो मतलब क्या होता है? डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? बोले गुड्स का डिलीवरी होने का पहले होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इनवॉइस गुड्स का डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। दीपन्ना, अरे दीपन्ना सुनते बच्चों? दीपन्ना सुनते बच्चों? अरे तो দীপন্না ক্লাস জয়েন করবে না? বাহ কি সুন্দর কথা। এটা কি ফোনটা? ঠিক আছে ছেড়ে দাও, তুমি ক্লাস না করলে আমার কি বলার আছে। ताड़ाताड़ी। ओके, तो क्या लिखा है मैंने? देखो, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज द टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, एंड द डेट ऑफ इनवॉइस इज बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब प्रोडक्ट डिलीवरी होने के पहले तुम्हारा इनवॉइस हो जाना चाहिए, बिकॉज विदाउट इनवॉइस तुम्हारा प्रोडक्ट डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। इस पेज में किसी को कुछ पूछना है? ফার্স্ট লাইন যেটা বললেন ওটা কি স্টেটমেন্ট হিসেবে নাকি হেডিং? যেটা না, না। টাইম টাইম অফ প্লেস অফ সাপ্লাই, টাইম অফ সাপ্লাই অফ গুডস, এটা হচ্ছে হেডিং।
ঠিক আছে, তারপরে গুলো আর সব যেটা ইন কেস অফ ফরওয়ার্ড চার্জ যেটা বললেন না, ওগুলো ওটাও ওটার একটা সাথে কি হেডিং। ওই লাইনটা একসাথে? না না, পর পর টাইম অফ সাপ্লাইয়ের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আসবে, যার মধ্যে হচ্ছে ওইটা একটা পয়েন্ট, যে ফরওয়ার্ড চার্জ। আচ্ছা सर फिर से एक बार फॉरवर्ड बोलिए चार्ज ना, शुरू से लिखना है सर, मतलब नहीं लिख पाया। नहीं लिखे हो? नहीं सर, वो खेत खेत में गया था ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया सर। कोई एक बार उसको जो लोग लिखे हो फोटो दे दो व्हाट्सएप ग्रुप में। जी सर। फॉरवर्ड चार्ज বলতে কি বোঝাতে চাইছো? হ্যালো স্যার, এখানে ফরওয়ার্ড চার্জ বলতে কি চার্জ বোঝাতে চাইছে? এবার যদি ফরওয়ার্ড চার্জ যদি না ভুলে যাস তাহলে আমি বলবো না কিছু। এতদিন ধরে আমি রিভার্স চার্জ আর ফরওয়ার্ড চার্জ তোকে পড়াইনি? রিভার্স চার্জ আর ফরওয়ার্ড চার্জ পড়াইনি আগের চ্যাপ্টার গুলোতে? नहीं करवाया सर ये। फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं करवाया। डेफिनेटली रिवर्स चार्ज करवाया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं करवाया है। না, রিভার্স চার্জ মেকানিজমটা আলাদা করে চ্যাপ্টার আছে, ওটা হয়। হ্যাঁ তো ওটা नहीं হয়। करवाया। হ্যাঁ, हाँ রিভার্স चैप्टर চার্জের কনসেপ্টটা বলেছিলেন। হ্যাঁ তো ওটাই তো আছে, ও ছাড়া তো আর কিছু নেই ওই চ্যাপ্টারে। ফরওয়ার্ড চার্জটা তাহলে কি বুঝতে পারলাম? আরে ফরওয়ার্ড চার্জটা ওখানেই যখন ডিসকাস করি সেখানেই বলা ছিল নরমাল যখন সেলার রেজিস্টার ডিলার। রিভার্স চার্জে কি বলা ছিল? রিভার্স চার্জে বলা ছিল সেলার আনরেজিস্টার্ড ডিলার, বায়ার রেজিস্টার রিভার্স চার্জে। আর ফরওয়ার্ড চার্জে হচ্ছে সেলার রেজিস্টার্ড, বায়ার যা খুশি হোক। এগুলো পড়তে হয়, যখন যেটা বলি সেটা লিখতে হয়। ओके गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करो अंडर। देखो वहां पे था ना नॉर्मल केस, नॉर्मल केस मतलब फॉरवर्ड चार्ज, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है अंडर रिवर्स चार्ज। इसको हेडिंग दें टाइम ऑफ सप्लाई का। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का अंडर रिवर्स चार्ज पहला वाला टैब में था, वो फॉरवर्ड चार्ज का, ये रिवर्स चार्ज। ओके, रिवर्स चार्ज में लिखो रिवर्स चार्ज में लिखो द टाइम ऑफ सप्लाई इज the time of supply is date of invoice, date of receive of the goods, date of receive of the goods, Date of receive of the goods, date of So, receive of the goods, receive अच्छा। receive, date of receive of the goods, and payment made, date of receive of the goods and payment made
স্যার একবার বলুন and and payment made, date of receipt of the goods and payment made made जहाँ पे लिखे हो वहाँ पे स्लैश दे के लिखो, पेमेंट मेड जहाँ पे लिखो वहाँ पे स्लैश दे के लिखो, amount debited, amount credited from the bank, amount credited from the bank whichever is earlier, which is earlier, স্যার এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবো না এমনি জাস্ট স্ল্যাশ দিয়ে লিখবো? স্ল্যাশ দিয়ে রাখবে, মানে অ্যামাউন্ট মানে যেদিন পেমেন্ট করেছি বা যেদিন আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটেছে এগুলোর মধ্যে যেটা আর্লিয়ার। আচ্ছা ओके नीचे जो लिखा हुआ है देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई विद द प्रोविजन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिकॉर्ड, इसको भी लिखो पूरा उतार दे सर। हाँ वो नीचे लिखा हुआ है ना, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इसको पूरा उतार दो। उसी के साथ में क्या अलग सर? वो नेक्स्ट पॉइंट में স্যার শুধু ছকটাই লিখবো তো, না তলায় যেটা লেখা আছে পেজ না ওটাও? ছকটা তো লিখতে বলিনি আমি, ছকটা তো আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, আমি তো লিখতে বলেছি নিচের লাইনটা, ছকটা তো আমি আলাদা করে লিখলাম। যাচ্ছে না ঠিকভাবে। আমি বলে দিচ্ছি, ইট ইজ নট পসিবল, ইফ ইট ইজ নট পসিবল if it is not possible to determine the time of supply with the above provision the time of তারপরে কি লেখা আছে ওগুলো? time of supply with the above provision उसको जूम करो, देखो दिखेगा। with the above provision the time of supply shall be the date of entry
The time of supply shall be the date of entry shall be the date of entry in the books of accounts ঠিক আছে of the recipient. ओके अच्छा, किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से? सर एक बार नीचे वाला लाइन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। नीचे वाला लाइन में ये बोला गया है, जो पहले जो रूल्स क्या था रिवर्सेस का रूल्स है, जिस दिन गुड्स का रिसीव किया रिवर्सेस में कौन पे करता है टैक्स? रिवर्सेस में टैक्स पे करता है रिसीवर। रिवर्सेस में टैक्स पे कौन करता है? रिसीवर करता है। मतलब जो गुड्स परचेज किया तो वो कब करेगा? बोला है जिस दिन वो गुड्स रिसीव किया और जिस दिन वो पेमेंट किया। जिस दिन वो रिसीव किया और जिस दिन वो पेमेंट किया, दोनों का अंदर जो अर्लियर है, इस हिसाब से वो टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस होगा। अगर बोल रहा है इस प्रोविजन अगर फॉलो नहीं किया तो, इस प्रोविजन अगर फॉलो नहीं किया तो, इस प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? प्रोविजन फॉलो नहीं होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। लास्ट वाला ऑप्शन में बोल रहा है बुक में जब दिन एंट्री हुआ, रिकॉर्ड जिस दिन हुआ उस दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगा। जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग परचेज बोल के रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। इसको লিখো। স্যার ওইখানে ওটা 30 ডেজ এর একটা ব্যাপার না না, ওগুলো আমি না, ওগুলো লিখতে তো বলিনি বাবা আমি, এগুলো তো সব না লিখিনি না, ওগুলো লিখবে না কেউ। ঠিক আছে। হ্যাঁ, নেক্সট হেডিং করো টাইম অফ সাপ্লাই অফ সার্ভিস। क्या बोले सर? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हेडिंग ना सर? हाँ, लिखे हो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? हाँ अच्छा, इसका अंदर पहला टेबल का फर्स्ट कॉलम को पूरा उतार दो। इफ इनवॉइस इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, इसको पूरा उतार दो। इसमें बोला गया है, देखो, इफ इनवॉइस इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट देन क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीव। पूरा कॉलम उतारना है, ऐसे उतारते हैं, मतलब कॉलम बना के कॉलम उतारना है। नहीं, तुम लोग कॉलम मत बनाओ, लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग तुम्हारा हिसाब से लिखो। ফার্স্ট কলাম को लिखो। ওর আন্ডারে क्या करें যেটা सर? ফার্স্ট ওর কলাম আন্ডারে যেটা পয়েন্টস গুলো আছে ওটাও লিখবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও লিখবে। সেকেন্ড থার্ড কিন্তু আমি লিখতে বলিনি, শুধু ফার্স্টেরটা লিখবে। केवल if the invoice is issued with the prescribed लिमिट, हाँ, उसको एक हेडिंग करके उसका नीचे वाला लिखो, डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा अच्छा सब डिवीजन करके। হ্যালো স্যার, একবার বলবেন কি বললেন? ফার্স্ট কলামটা পুরো লিখবো? শুধু ফার্স্ট কলামটা লিখবি।
फर्स्ट कॉलम लिखना हो गया जिन लोगों का, वो लोग सेकंड कॉलम का जस्ट हेडिंग लिखो। नहीं, सेकंड कॉलम को पूरा कॉपी कर दो, थर्ड कॉलम में जाना नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम दोनों को कॉपी करो। फर्स्ट कॉलम एक्सपेक्टेड हो गया सबका, सेकंड कॉलम भी करो। স্যার মানে এখানে বলছে মানে যে দুটো পয়েন্ট আছে ওই দুটোর মধ্যে যে কোনো মানে আর্লিয়ার হবে সেটাই তো, আর্লিয়ার একদম মানে বলতে একদম একদম। আচ্ছা, এই ব্যাচে যারা আছে সবার ট্যালি কমপ্লিট? না না স্যার আমার নয়। শুরুই नहीं सर। হয়নি। ট্যালি ট্যালি শুরুই হয়নি? না নেই স্যার আমার শুরুই হয়নি। আমার স্যার স্টার্ট হয়েছে খালি জাস্ট। हम लोग का भी कंटिन्यूएशन हो रहा है। যে যাদের শুরু হয়নি তাদের প্র্যাকটিক্যাল করাবো কি করে রে? তোরা কৌশিক স্যারকে বল যে আমাদের ক্লাস দিন। স্যার আমাদের বিসিএ শেষ হয়নি। প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে তোরা ঝুলে থাকবে অনেক দিন। ট্যালি যতদিন না শুরু হবে ততদিন প্র্যাকটিক্যাল করাতে পারবো না। স্যার আমি আরকে স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আরকে স্যার বললো তোমাকে যে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো করো, তারপরে তোমার ট্যালি ক্লাস দেওয়া হবে। বহু পুরনো স্টুডেন্ট, তোরা এখনো ট্যালি পাসনি কেন? তখন তো অফলাইনে ট্যালি হচ্ছিল, হুম। আমি তো যেতে পারিনি। ও আচ্ছা আচ্ছা, শুভময় দাস মন্ডল। হুম। सर ये वेयर द अबव प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इसको नहीं लिखना है ना? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन बंद हो गया जो अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअली वो लॉ बना के रखा है, जहाँ पे अप्लाई नहीं है वहाँ पे क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बंद हो गया, इसीलिए हम उसको छुड़वा रहे हैं। तो ये पहला पेज में किसी का कुछ पूछना है तो पूछो। স্যার এই লাইনটা মানে ডেট অফ প্রভিশন অফ সার্ভিস কোনটা? যেটা डेट লাস্ট ऑफ, লাইনটা अच्छा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मींस डेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ सर्विस। मतलब ধরো একটা কোনো কাজ করতে যেদিন আমার কাজটা কমপ্লিট হয়েছে, দিস ইজ কল্ড ডেট অফ প্রভিশন অফ দ্য সার্ভিস। Okay, complete. Moving to the next page. Under reverse charge, only इसको लिखो। अर्लियर ऑफ पहला ए एंड बी लिखा हुआ है, इसको लिखो। द डेट ऑफ पेमेंट वाला सर? हाँ, अर्लियर ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है ना, इसको लिखो, क्योंकि थर्ड वाला बंद हो गया। हेडिंग है रिवर्स है, देख এখানে রিভার্স এ যাচ্ছে। স্যার কোনটা লিখবো বললেন? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। আচ্ছা এটা হেডিং দেবো? না এটা তো আছে। हाँ, ওটা ওটা ছিল না বাবা। कौन सा देना है सर? हेडिंग लिखना है, देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। लिख लिए सर। इसके अंदर ये लिखो, जो ए एंड बी करके जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसको लिखो। अच्छा
कौन सा लिखना है सर बताइए? हाँ कौन सा लिखना है? वो ए एंड बी लिखना है, अर्लियर ऑफ बोल के ए एंड बी लिखना है। ठीक है सर। लिख लो फटाफट लिख लो। अच्छा ये अगर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। रुकिए सर, सर एक मिनट, रुकिए रुकिए सर, अभी नहीं लिखे हम। टाइम कंप्लीट होने वाला है, जल्दी करो। স্যার এটা টাইম অফ সাপ্লাইয়ের মধ্যেই তো পড়ছে সব পয়েন্ট গুলো। হ্যাঁ সেকেন্ড পয়েন্ট আউট তো আন্ডার রিভার্স চার্জ একটা ইয়ে করলাম, হেডিং করলাম। নিচের গুলো লিখেছিস?